Hey my loves, welcome back to my channel where we talk about science behind skincare, a lot of product and challenge videos, and sometimes I post related to fashion and some of my personal vlogs. So if that's interest you and if that's your thing, make sure you subscribe to my channel and hit on the notification bell as well so you never miss any of my videos. And if you're not following me on Instagram, then guys come and say hi and let's be friends there as well. Now without wasting a minute, let's get started. Today I'm gonna share with you my few of the product empties. So I'm gonna start with the face wash first. So this is the Wow Ka Ubtan foaming face wash with inbuilt brush. It's finished and I kind of like it because इसका जो fragrance है that is really nice and it's a foaming cleanser, foaming face wash. बहुत अच्छे से foam बनती है. There is a brush. ब्रश को आप एज अ जेंटल एक्सफोलिएशन की तरह यूज़ कर सकते हो, बट अगर आपके पोर्स बहुत जल्दी ओपन हो जाते हैं तो माई सजेशन इज़ कि आप डायरेक्टली फोम अपने हैंड पे लेके देन इसको मसाज करें, देन इट वर्क्स वंडरफुली. एंड आई थिंक दिस प्रोडक्ट इज़ मोर सूटेड फॉर और बेस्ट सूटेड फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन पीपल, बिकॉज जब भी मैंने इसको यूज़ किया था विद द कॉम्बिनेशन ऑफ इनका जो रेड अनियन वाला क्रीम था, देन दिस वर्क वंडरफुली. बट जब वो क्रीम ख़त्म हो गया एंड स्टिल आई वॉज यूजिंग दिस वन, तो मुझे इसने थोड़ा सा ड्राइनेस दिया था. So I would say this product is best suited for normal to oily skin, but if you're a dry skin, you have to make sure that you are using a good hydrating moisturizers after this one. So whether I will repurchase this or not, definitely yes, but I think I will go for the tube packaging one because I love the fragrance of this one and I don't know, I just love the fragrance of this one. And for the dryness, I think I'm gonna use their creams which I have with me. So yeah, definitely yes. And whether I will recommend, highly recommended. Second one in the list is this Nivea ka Micellar Air Skin Breathe Micellar Rose Water Face Wash. ये मैंने I think आपको अपने एक बार regret buying में भी दिखाया था, but anyhow we have kind of managed to finish it off. and मैंने यूज़ नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने यूज़ किया, लेकिन जब भी वो यूज़ करते थे मुझे बहुत सुनने को मिलता था कि यार ये क्या गंद दे दिया मुझे यूज़ करने को. I don't know, this is the very first product जिससे मैं disappoint हुई हूँ from Nivea. Otherwise you guys know I am a Nivea fan. I am a true fan of Nivea and मुझे इनके सारे के सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, but this was the first product जिससे मैं बहुत ज़्यादा disappoint हुई हूँ. So yeah, we have managed to finish this one, but will I recommend or will I repurchase? No. Alright, so the next cleanser is from Innisfree. It's their Blueberry Rebalancing 5.5 cleanser. Now इसका मैंने रिव्यू आई थिंक काफ़ी टाइम पहले शेयर किया था, 3-4 महीने पहले आप लोगों ने शेयर किया था. एंड ये 100 ml की क्वांटिटी में आता है एंड इट हैज़ creamy, not exact thick cream, it has a very light creamy texture, foams really well and अच्छे से क्लीन करता है आपके फेस को. एंड इट्स अ नो नॉनसेंस क्लेंजर बिकॉज इट doesn't claim anything. It just say that it gonna contain the 5.5 pH of your skin, which is a healthy pH, and that's how your skin gonna be healthy. If you're looking for a face wash which balance out your pH of your skin, then definitely you can try this one out. So after face wash comes the scrubbing. Now you guys know I don't prefer physical exfoliation much, but this one was my favorite because this is a 3-in-1 product and इसको मैंने अभी latest आपको जो टॉप 10 फेस वॉश वाला वीडियो मैंने उसमें भी आपको दिखाया था. दिस वन इज़ दी फेशियल उपतन नारंगी एंड नाक केसर फ्रॉम फॉरेस्ट एसेंशियल्स. ना ये फिनिश हुआ है, बचा है थोड़ा सा, लेकिन अब मेरे किसी यूज़ का ये नहीं है बिकॉज इट्स एक्सपायर्ड नाउ. सो अगर आप भी ये वाला प्रोडक्ट ले रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप इसको विद इन टाइम फ्रेम के अंदर यूज़ कर लें, बिकॉज मेरे साथ यही इशू हुआ. ये मैंने लिया था लास्ट ईयर, आई थिंक जुलाई के महीने में मैंने लिया था इसको इनके स्टोर से. एंड इसका जो शेल्फ़ लाइफ होता है वो 11 मंथ्स का होता है, वो ध्यान रखें. तो ये 4/19 का बना था, मुझे इसको 3/20 तक यूज़ करना था, बट स्टिल मैंने उसके बाद भी इसको 1-2 बार यूज़ किया था बिकॉज आई नो इट्स अ नेचुरल प्रोडक्ट. इसमें कोई केमिकल्स नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा ख़राब और आपके स्किन को ख़राब कर देंगे. दैट्स वाई मैंने इसको यूज़ कर लिया था. बट आप देख सकते हो बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है, ये लाइक 1 या 2 बार की क्वांटिटी है बची हुई. सो आई एम गोना यूज़ इट एज माई बॉडी स्क्रब बिकॉज बॉडी पे तो आई थिंक चल जाएगा. सो आई एम गोना यूज़ इट एज अ बॉडी स्क्रब बिकॉज थोड़ा सा बचा हुआ है, तो आई एम नॉट गोना वेस्ट इट बिकॉज ये इतना भी सस्ता नहीं है कि इसको ऐसे फेंक दो. फॉर्स आई एम गोना यूज़ इट एज अ बॉडी स्क्रब.
Now will I repurchase it or will I recommend? Definitely I'm gonna repurchase this one and highly recommend it. Alright, next come the toner. Now this one is from the Facia. Finally I'm able to finish it off. This is the Chia Seed Hydrating Facial Toner. Now इसका मैंने रिव्यू अपने साथ रिसेंटली आई थिंक 2-3 महीने पहले शेयर किया था. लिया मैंने लास्ट ईयर का था. बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है. ये मैंने जस्ट अब रखे हुए हैं बिकॉज यू नो कभी मुझे किसी की कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ जाए, सो फॉर दैट पर्पज. अदरवाइज इट्स ऑलमोस्ट फिनिश. आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ दिस वन एंड या आई काइंड ऑफ लाइक इट. इट्स वेरी हाइड्रेटिंग टोनर बट यू गाइज नो आई एम नॉट अ टोनर फैन. मैं ज़्यादा टोनर्स प्रेफर नहीं करती हूँ. सो इफ़ यू आर अ पर्सन हु looking for a good hydrating toner, you can definitely try this one out. And will I repurchase? I think no, because I don't use toners. Will I recommend? Highly recommended. Next comes the serum. So पहले बात करते हैं जो मेरा पहले फिनिश हुआ था. This one is from Olay Regenerist Micro Sculpting Serum. ना ये मेरी सेकेंड बॉटल थी जो मैंने फिनिश की है. अब ये ख़त्म हो चुका है. I just love this serum. I know it's a bit expensive but it's worth every single penny of yours, because if you are a person who having those acne scars and acne marks or who are struggling from those long time acne scars, I think you should definitely give this one a try. Because अगर आपने इसका मेरा 28 डेज़ वाला चैलेंज वाला वीडियोस देखा है तो मैंने आपको इसमें दिखाया था कि मेरे इस साइड पे काफ़ी सारे एक्ने के स्कार्स थे जो कितने महीनों से ठीक ही नहीं हो रहे थे एंड इसने वो उड़ा दिए थे सारे मार्क्स. अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको पता है. सो इट हैज़ niacinamide विच इज़ विटामिन B3 जो आपके एक्ने स्कार्स को यू नो फेड अवे और उनको ख़त्म करने में हेल्प करता है. So highly recommended if you are also facing the acne scar wala problem. So well, whether I'm gonna repurchase this one, definitely yes in future, because अभी मुझे दोबारा से यहाँ पे acne के scars हो गए हैं जो यू नो अभी जा नहीं रही हैं, बिकॉज इट्स बीन 2 months एंड आई एम कंटिन्यूसली ट्राइंग समथिंग कि हाँ वो निकल जाए. सो फॉर दैट आई थिंक मैं भी केमिकल एक्सफोलिएशन ट्राई कर रही हूँ. इफ़ यू गाइज फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, आपको पता है अभी मैं देख रही हूँ कि अगर वो काम कर गया देन इट्स वेल एंड गुड. एंड सेकेंड इसके बाद मैंने लिया है डर्माकोका नियासिनामाइड सिरम. सो अगर वो भी काम कर गया, मतलब अगर केमिकल एक्सफोलिएशन काम नहीं की देन आई एम गोना यूज़ द नियासिनामाइड सिरम. अगर वो भी काम नहीं किया देन डेफिनेटली मुझे ये रिपर्चेज करना पड़ेगा, बिकॉज इसने मेरे पहले भी मार्क्स लाइट किए हैं और मेरी स्किन को क्लियर किया है. सो ऑफ कोर्स ये दोबारा काम करेगा तो मैं दोबारा इसको रिपर्चेज ज़रूर करूँगी. एंड विल आई रिकमेंड? हाईली रिकमेंडेड. सो द नेक्स्ट सीरम विच आई हैव रिसेंटली फिनिश्ड इज़ दिस वन फ्रॉम वॉस्किन साइंस. इट्स द विटामिन सी सीरम. ये मेरा फर्स्ट सीरम है जो मैंने फिनिश किया है विटामिन सी का, और ये मेरा फर्स्ट सीरम ही था. लाइक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई वॉज यूजिंग विटामिन सी एंड इसके साथ मैंने लिया था 1 month चैलेंज. अगर आपने वीडियो नहीं चेक किया है, यहाँ आई बटन में डाल दूँगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वो चेक ज़रूर करना. मैंने इसके साथ 1 month चैलेंज लिया था एंड मैंने आपको इसमें पूरे लाइव क्लिप्स दिखाए हैं कि कैसे कैसे इसको यूज़ करना है एंड ऑल दो स्टफ. So yeah, will I recommend this or not? Definitely yes. If you're new to vitamin C, if you're a person who's just going to start vitamin C, I'm gonna say कि go for this one because it's very safe for human use and it's dermatologically tested as well and concentration भी इसमें 20% vitamin C है and as such आपको skin पे irritation नहीं देता है. ये perfectly सूट कर जाता है because मैंने आपको उस वीडियो में बताया है. बट जब भी अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो वो वीडियो पहले ज़रूर देखना कि मैंने इसको किस तरह से बिल्डअप किया था एंड कैसे मैंने इसको यूज़ किया है, तो उसी वे में यूज़ करें देन इट गोना वर्क वंडरफुली. अब अगर I'm gonna repurchase this one, I have already repurchased this one, but this one is vitamin C plus serum. Now it has vitamin C 20% plus 1% ferulic acid. So yeah, I have repurchased this one, so highly recommended if you are a beginner to vitamin C. Next is the eye cream. Now I have recently finished this up. This is the Innisfree green tea eye cream. Now I kind of like it a lot and it has green tea. That means of course ये आपके अंडर आइज डार्क सर्कल्स को कम करेगा. So मैंने जितना टाइम इसको यूज़ किया मेरे अंडर आइज मुझे ब्राइट फील होते थे. मुझे कभी भी डार्कनेस फील नहीं हुई अपने अंडर आइज के नीचे. बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है. बस थोड़ा सा आपके अगर आइज़ के अंदर चला जाता है तो थोड़ा सा स्टिंग करता है. उतना ज़्यादा नहीं करता कि आप बर्दाश्त ना कर पाओ, बस थोड़ी सी आपको स्टिंग करता है ये आइज़ में. अदरवाइज़ अ वेरी ब्यूटीफुल आई क्रीम. एंड इसके बाद से जब मैं यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ कम्प्लीटली वेस्ट फॉर मी. आई एम गोना शेयर दैट रिव्यू सून विद यू. बट या फॉर दिस आई कैन से हाईली रिकमेंडेड इफ़ यू आर having those puffiness under your eyes and you have slightly dark circles.
देन आप इसको ले सकते हो. एंड विल आई रीपरचेज दिस और नॉट? डेफिनेटली आई हैव रीपरचेज्ड द आई क्रीम फ्रॉम Innisfree but not the green tea variant. I have repurchased the other one, but yeah, will I recommend? Highly recommended. Next is a gel. This one is the Wow Hyaluronic Acid Water Gel. Now I have completely finished with this tub. ये मैंने यूज़ किया था जब मैं अपना ये विटामिन सी वाला सीरम यूज़ कर रही थी, लाइक दिस वन. तो मैं क्या करती थी, पहले ये यूज़ करती थी एंड उसके बाद मैं अपना ये hyaluronic acid water gel लगाती थी एंड देन आई यूज़ टू अप्लाई अ गुड मॉइस्चराइजर एंड देन सनस्क्रीन. सो दिस कॉम्बिनेशन हैज़ वर्कड वंडरफुली एंड दैट्स वाई आई लाइक इट. एंड अभी मैंने इनका जो इन्होंने सिरम निकाला है मैंने वो भी परचेज़ कर लिया था एंड उसका रिव्यू मैंने रिसेंटली आप लोगों के साथ शेयर किया है. अगर आपने नहीं देखा है यहाँ आई बटन में डाल दूँगी या ऑफकोर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा. So yeah, for this I can say it's a really good hyaluronic acid product. If you're looking for a hyaluronic acid product, definitely go and try this one out. Will I repurchase? I told you I have repurchased the serum of the same range. So yeah, highly recommended. Next are the two body lotion. One is from Nivea Oily Lotion Rose and Argan Oil. Completely loved it. बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है एंड consistency is very light, doesn't feel heavy and sticky and moisturize your skin really well. Will I repurchase? Definitely yes. मैंने इसका coconut tender oil वाला repurchase किया है. I'm gonna repurchase this variant and as well as the vanilla one, and yeah, highly recommended. Next which I have finished is this from the Body Shop का strawberry softening gel lotion. You can see again the consistency is very light. I mean if you're a person जिसको ज़्यादा stickiness oiliness पसंद नहीं है, जिसको heavy lotion नहीं पसंद है, they can definitely go for this one. बहुत light है, बिल्कुल ऐसे matte finish आपको देता है, बिल्कुल पता नहीं चलता कि आपने कुछ लगाया हुआ है. And fragrance is again strawberry का है, authentic strawberry fragrance. So if you're a strawberry lover, highly recommended. And will I repurchase this one? Maybe not, because I'm not a strawberry fan. मैंने इसको लिया था because I just wanted to try this one out. But yes, if they come up with the British Rose वाला lotion, definitely I'm gonna repurchase. Next are few of the fragrances. Now this I have tried recently. ये था Dove का original moisturizing cream वाला deodorant. I think मेरे लिए तो Nivea के ही best है. I think मैंने ट्राई करने के लिए इसको लिया था बट द फ्रेगरेंस इज़ नॉट एट ऑल pleasing, so I don't like it. And will I recommend or repurchase? No. And next empties are these. I mean I don't know मैंने कितने फिनिश किए हैं. These are Nivea के roll on. One is the Pearl and Beauty all time favorite and another one this whitening smooth skin. I don't like this one, I love this one. And इन दोनों में से अगर मुझे कोई रिकमेंड करना है, डेफिनेटली पर्ल एंड ब्यूटी वन, हाईली रिकमेंडेड. रीपरचेज डेफिनेटली रीपरचेज हुआ है, ये बहुत बार रीपरचेज हो चुका है. आई थिंक पता नहीं कितने सालों से मैं इसको रीपरचेज कर रही हूँ एंड अभी भी इसका जो नया वर्जन है वो मेरे डेस्क पे है एंड ये फिनिश हो चुका है. सो या ये वाले आपको आई थिंक ये वाला आपको हर एमटीज़ में देखने को मिल जाएगा. सो या हाईली रिकमेंड. एमटीज़ आर फ्रॉम हेयर केयर. दीज आर दी शैम्पू एंड कंडीशनर फ्रॉम Matrix Biolage Hydrating Shampoo and Hydrating Conditioner. Now these are for dry hairs. Now you guys know I have oily scalp and my hair texture is in front of you. They are silky and wavy. These have worked wonderfully on my oily scalp. Doesn't feel oily. Like wash करने के बाद बिल्कुल भी चिप वाले बाल नहीं फील होते हैं. बहुत अच्छे से क्लीन करता है आपके स्कैल्प को, अच्छे से हाइड्रेट करता है आपके हेयर्स को एंड डेफिनेटली सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है. एंड विल आई repurchase? Definitely yes, I will repurchase them, maybe in other variant, but recommended definitely yes for very dry hairs. If you have dry hairs you can give this one a try. Empties are these Wow Skin Science के Red Black Onion Seed Oil Shampoo and Conditioner. Now ये completely finish हो गए. I have completely loved them. मुझे अच्छा लगा इनको यूज़ करके. हेयर्स काफ़ी स्मूथ एंड सॉफ्ट फील होते थे इनको यूज़ करने के बाद. बट मेरे हेयर फॉल पे मुझे कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ. मे बी दैट बिकॉज ऑफ माई पोस्टमार्टम हेयर फॉल इशू. जो मेरे हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है. स्टिल मुझे पोस्टमार्टम वाला हेयर
हेयर फॉल होता है, आई डोंट नो कब ठीक होगा वो। सो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दिस शैम्पू, लाइक मैं कोई भी शैम्पू यूज़ करती हूँ मुझे हेयर फॉल होता है, बट येस दे डोंट हेल्प, लाइक इन्होंने मेरे को बिल्कुल भी हेयर फॉल में हेल्प नहीं किया। सो इफ़ यू आर थिंकिंग कि हाँ ये आपके हेयर फॉल को स्टॉप करेंगे, सो आई कांट कमेंट ऑन दैट बिकॉज मेरा तो हार्मोनल इशू वाला इशू है, तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकती हेयर फॉल पे। बट येस, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर शैम्पू एंड कंडीशनर जो आपके हेयर्स को स्मूथ एंड सॉफ्ट बनाए, frizzy hairs and dry hairs, and definitely you can try this one out. Whether I will repurchase or not, maybe not, because I have repurchased their green tea one, so I'm gonna try them and then I'm gonna let you know कि वो कैसे हैं। So yeah, if you are looking for shampoo and conditioner जो आपके हेयर्स को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाए, तो आप इनकी तरफ जा सकते हो, बट हेयर फॉल पे मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकती। Alright, that is it. Those were my empties. I hope you found this video helpful. थोड़ी बहुत हेल्प मिली, इन्फॉर्मेशन मिली है। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।